اصل اصل تو یہ ہے منہ سے یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اندر سے آپ احمد نذیر کے ہم خیال ہیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ثانی صاحب کو، وہ کہہ رہے یار میرے دل پہ فتویٰ لگا دیا ہے. نہیں، یہ جو فیضان یہ جو تھا مبشر جس نے یہ اصطلاح نکالی ہے نئی مرزائیت کے لیے، بڑی صحیح اصطلاح ہے. تو یہ تو کہہ رہے تھے میں 3-4 گھنٹے سے نیچے بیٹھا سن رہا ہوں، مجھے اوپر نہیں آپ لے رہے. تو اس نے تو ساری باتیں پھر سنی ہوئی تھی، وہ کیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلا اسلامی اصول کی فلسفی پہ. جھوٹ بولا اس نے کچھ بھی نہیں سنا. اس نے صرف اتنا ہی دیکھا ہے کہ یہاں پر مرزا صاحب کی کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ جب مرزا صاحب کی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو گالیاں دی جا رہی ہیں بس. ہاں بالکل، باقاعدہ اس ویڈیو میں موجود ہے. وہ کہتا ہے احمد نذیر گالیاں دے کر گیا ہے. وہ پوچھ رہے، وہ کہتے ہیں کہاں گالی دی اس نے؟ وہ تو ریکارڈنگ لگا کے سنتا رہا. ایسی مزہ کا خیز قوم ہے یہ ویسے. ملک عمران فری ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رائے صاحب. کرو گے ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ. ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਾਈ, ਮਗਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ. ثانی ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ثانی ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ. ਜਮੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਾਂ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਨਸ ਜਾਣਾ. ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਉੱਲਾ ਵਿਰਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਾਮ. ਇਨਾਮ ਉੱਲਾ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ. ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇਗਾ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਲੇ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇ. ਚੋਰਾ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ. ਜੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਦੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਸੀਅਤ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖੋ, مطلب کہ کتنی غلیظ فحش گفتگو ہے دیکھا جائے تو. اور وہ الفاظ بار بار وہ کر رہے ہیں جی واٹر کہہ رہے ہیں مجھے دکھائیں کہاں لگی ہوئی ہے اور وہ فلانا میں خود اس سے فائدہ اٹھاؤں وغیرہ. یعنی کیسی بکواس گفتگو ہے. مرزائی اپنے آپ نو سمجھتے ہیں اسی دنیا دی اصلاح واسطے آئے. لچر فوج گفتگو جڑی انہاں دی متواتر اس موضوع تے اور اس اصطلاح نو لے کے وہ ہر ایک تے لاندے رہے نے. بے شرمی دی انتہا ہے. وہ لفظ بھی منہ تے لے آنا انسان شریف آدمی دے منہ تے مشکل ہے. ایسے بدبخت مرزائی نہیں.
ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹੀਲ ਤੇ ਵੜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲੀਮ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਜ਼ਾਇਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਅਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰੂਦ ਕਰ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਅਕਬਰ ਰੋਵੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾਇਆ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰਾ ਕਾਕੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫੋਹਸ਼ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨਾਸਰ ਬੈਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਨਾਸਰ ਬੈਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਫਜਰ ਪੜੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਗੀ 4 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਟੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਰਲੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕ ਲਾਈ ਸੀ फोटो। आमिर नजीर के ये दोनों कट्टे हैं, गलत मलिक और नसर चौधरी। ਨਸਰੁੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। हाँ जी, उन्होंने बड़ियां गालां कढ़ियां ने। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਸਰੁੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਐਸੀ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ। ਐਸੀ ਬਦਬਖਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਨੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਖੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੱਡਾ, ਉਹ ਮਰਫੂਲ ਕਲਮ ਹੈਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕ ਤੇ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕੌੜਾ ਬੰਦਾ, ਖਰਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਮਲਕ ਦੇਖੋ, ਮਲਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਨੈਨ ਸਮੇਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮਲਕ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸੀ ਨੀਚੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਉਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਆਵੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਲਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
किताब के शोशे शोशे ते यकीन रखना, पढ़ी वैसे मैं कोई नहीं, ऐसे जाहिल मिर्जाइत में मिले ने लोग। हालांकि नाल ऊपर बैठी है उमर रुबाब भी, हाँ इसमें बावजूद मलिक साहब ने गंदी तरीन गालां कढ़ियां। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਸ ਬਟਨ ਉਹਦਾ ਦੱਬ ਜਾਏ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी 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 ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ओए होए होए। मैं तो थोड़ी देर देखा उत्थे ते मलिक साहब बहुत जज्बात ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ। ਵੈਸੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਸਰਤ ਬਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਨਵਾਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਟਨ ਉਹਦਾ ਦੱਬ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਸਰ ਖਬਾਸ ਚ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਟੇਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਵਾਕਈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਵਣ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨੱਕੋਂ ਝੁਲਕ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਧਰ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਸ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਗੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮਲਕ ਕੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਢਿੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਢਿੰਗਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦਾ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦਿਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी 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 बोलो। अमर भैया आपसे बात है कि अगर आपको किसी मुरब्बी के सामने बिठाया जाए फेस टू फेस तो आप बैठेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं रेडी। ये सवाल तो लेकिन मुरब्बी से आपको आप- पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके किसी नेबर कंट्री में, कहाँ पर? नेबर कंट्री में। हाँ हाँ अगर मुमकिन हुआ कोई ऐसा टाइमिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह। मैं आपको उनका नाम ना भेजता हूँ ये प्राइवेट मैसेज में, शायद आप जानते भी हों। 60 साल का कहते हैं वो, मुझे एक्सपीरियंस है। कि वो रूहानी खुदैन पर बात करेंगे मुरब्बी रूहानी खजाइन पे, रूहानी खजाइन पे।
उस मुरब्बी का तो पहले मुंह चूमागा मैं ये वो कायम रहा इस गल ते। नहीं, वो उस मुरब्बी हैं और साथ सीनियर इंचार्ज हैं। वो बल्कि उनसे मेरी भी बात कराएं, मुझे भी बड़ा शौक है किसी मसला मुरब्बी तो से। ये है साहब कि दिल मैं- का नहीं काम, दिल बेईमान हो गया, कहना मैं मुंह चूमूंगा। दसो हाँ बिल्कुल, वो मुरब्बी जो रूहानी खजाने ते गल करना चाहता है ऐसा मुरब्बी तो अज तक देखे नहीं असी। नहीं चौहान साहब वो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। हाँ मैं मुरताद हाँ ਜਿਹੜਾ मिर्जा साहब ਦੇ तमाम दावी ਤੇ ईमान रखना है। आमर नज़ीर ਜਿਹੜਾ कज़ाब दजाल ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। मुरब्बी साहब ਤੇ ਆਪ ਵਿਟ ਕਰ ਛੱਡੀ मुरब्बी साहब ने। ज्यादा मसला ये ਹਾਂ है, ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कर लें बात। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਰਤਦ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ आमर नज़ीर मेरे गुंजाइश से है। बेहतर है मिर्जाइयों के मुताबिक। नहीं, अभी मुरब्बी साहब को नाम नहीं बताया अमर भाई का ना, अच्छा अच्छा, शायद वो जानते हों, आई थिंक जानते होंगे, लेकिन नाम नहीं अभी बताया। लेकिन वो नाम नहीं कहते हैं बताया कि वो तो फिर जब नाम नहीं। बताएंगे तो फिर आके बात करेंगे। नहीं, वो कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, हम बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं है। बस फिर उस बेचारे को पता ही नहीं है, वो नादानी में मारा जाएगा। नहीं, नदानी में नहीं, असल में दो मुरब्बी जो छोटे उनसे बात हुई थी, वो कहते थे हम तो नहीं कर सकते लेकिन ये नंबर ले लें आप। तो ये हमारे सीनियर मुरब्बी साहब हैं, अभी तो गए हुए हैं इंग्लैंड में, तो 2 वीक के बाद वापस आएंगे तो वो आपसे रूहानी खजाइन पे करेंगे। भी मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे मुरब्बी नहीं है ना, उसको तो पता ही नहीं कि उसका पाला किसके साथ पड़ने वाला है। वो तो बेचारा कह देगा कि हाँ, क्योंकि मुरब्बी तो अपने ही माहौल में रहते हैं ना, वो समझते हैं हमारे पास तो बड़ी ताकत है। जब उनका मुखालिफ के साथ बात होती है ना, फिर उनको पता चलता है कि उनके पल्ले तो कुछ है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान आप इस तरह करें, आप ना आमिर भाई का नंबर ले लें, तो आप ये बाकी सारी बातें प्राइवेट में करें। तो बड़ी ज़बरदस्त, आप बड़ी अच्छी न्यूज़ लेकर आए हैं, तो अगर आपकी उनसे बात हो गई है तो बाकी सारी बातें हम फ़ोन पे कर लेते हैं। आप किस कंट्री में बाय द वे? जी जी ठीक है। नहीं, कंट्री तो बताएंगे तो वो पहुंच जाएंगे ना मुरब्बी तक। मुरब्बी साहब को सोशल मीडिया चलो वाले ठीक है, पकड़ फिर लेंगे। आप ऐसा करें ना, आप लेकिन फ़ोन अमर नंबर भाई ले का लें। नेबर कंट्री है, बिल्कुल नेबर कंट्री है। चलो कोई मसला नहीं है, आप ना नंबर ले लेना आमिर भाई का। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको प्राइवेट में सेंड कर देता हूँ, तो आप बाकी बातें व्हाट्सएप पे कर लें। जी ठीक है, क्योंकि जज़ाकल्लाह। यहाँ पे हैं इस तरह के लोग जो सुन रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये इस तरह की कोई गुफ्तगू प्राइवेट में भी हो। तो आप बेहतर यही है कि बाकी बात आप ना व्हाट्सएप पे करें, इंशाल्लाह फिर बेहतर तरीके से इसको आप फॉरवर्ड कर सकें। जी जी ठीक है, ओके जी, थैंक इसको ही यू। कर देता हूँ कि ये बात कभी नहीं होगी। ये आप तो ना मुझे भोला फॉलो मुरब्बी करें है। ना ज़रा, तो मैं आपको प्राइवेट में भोला ना नंबर मुरब्बी है, भेज उसको बेचारे को पता ही नहीं कि किसके साथ इसका पाला पड़ने वाला। जी जी मैंने फॉलो कर दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने फॉलो कर लिया। उमर शहजाद है ना आपका भाई नाम? आपको नंबर भी दे देंगे। तो आप एक काम करना, बस उस मुरब्बी को कहना अमर भाई की प्रोफाइल पे जाकर कुछ नहीं देखना, बात करनी है आके बस। अगर प्रोफाइल चेक कर ली मुरब्बी वैसे भाग जाएगा। टिकटॉक पे तो बात नहीं होगी, यहाँ तो फेस टू फेस या व्हाट्सएप पे। हाँ अच्छा, मजीद बात भाई ना करे ना। हाँ चले सही है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम बाकी वालेकुम। कोई बात है। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। और उस मुरब्बी को भी मेरी तरफ से प्यार कहना, जो रूहानी खजाने दुआएं से बात खैर कर करने दुआएं खैर कर दो दुआ। बेचारा भोला ढग्गा मारिया जाएगा। शुरू ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਬਰੋਡ ਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ। कभी मैं नो वर्ल्ड। करता कभी भी देखिए, ਹਾਂਜੀ ਇਹ सब ਨੋ तो ਵਰਲਡ बड़ा इन्हां दा मुरब्बी है। ਬੜੀ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। अंसर रजा मुरब्बी सब तो बड़ा है,
ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਫੱਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ से बात नहीं होगी, क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहना। कल अवैस भाई ने बड़ी उन्होंने गालां कड्डियां ने बिला वजह। कुरान की आयत के साथ खिलवाड़ करना मिर्जाइयों को सिखाया जाता है, वो करते हैं। कहते हैं हमने कुरान से बात करना कितने गाਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਯਸੂ ਭਾਈ? कल अवैस भाई ਨੂੰ गालां कड्डियां ने ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਜਵਾਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, और बड़े गंदे लफ्ज बोले। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ नहीं वो पता नहीं गुमनाम से ये मैं पुराना थले लिख के इस तरह की बकवास करते। और मौलवी साहब ने भी गाली निकाली, वो मौलवी बड़ाई साहब नहीं है, मौलवी नवीस साहब, उनका देखो यार वो भी बगैरत बगैरत कह रहे थे, वो भी बगैरत कह रहे थे, बगैर मुसलमान गालियां निकालता है मौलवी बड़ाइश तो। मेरे सामने वो मुझे देखता है तो गालियां हो जाती है। लेकिन लेकिन उधर उन्होंने मना भी किया, कुछ लोगों ने ना, मतलब जमात अहमदिया के लोग थे, उन्होंने मना किया कि नहीं गालियां नहीं, लेकिन उनको उसको ब्लॉक एंड पे जाके ब्लॉक किया, जब पूरा गालियां दे के उसने अपनी दिल पूरा कर लिया ना, उसके बाद राजा राजी कर लिया तो फिर ब्लॉक कर दिया। मिर्ज़ाई कभी बात ही नहीं कर सकता लिटरेचर पे। इस गल ते सारे केस मार जाओ, पता लगा अमर भाई ने गुफ्तगू हो रही है, मरदिया ने रबी लब लेना है, इस वास्ते सारे चुप कर जाओ। नहीं मैं कहता हूँ आ रही है, किसी को भी पता चला ना कि वो मुरब्बी कर रहा है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वही तुम कहाँ जा रहे हो, मारे जाओगे, शेर के मुंह में जा रहे हो, कच्चा छुपा जाएगा। असल बात ये है कि जैसे वो इन साहब ने बताया कि वो मुरब्बी सोशल मीडिया पे नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और इस तरह के जो मुरब्बी हैं ना सारे मिर्जाई, वो समझते हैं कि हमारे पास 2-3 दलाइल हैं, इससे हम मलिया मेट कर देंगे सब। ये जहलियत की वजह होती है, इल्म नहीं होता, आदमी समझते हैं यार तारिक साहब, जंबा ग्रुप के पास कौन से दलाइल हैं? जंबा ग्रुप के पास भी तो कोई दलाइल नहीं है ना मिर्जा साहब का जिल और बरूज होने के। जंबा साहब के पास दलाइल हैं। पहली तो बात यह है कि जंबा साहब का दावा है, मिर्जा साहब की एक तहरीर, मिर्जा साहब की एक तहरीर दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेरा जिल और बरूज आएगा। मिर्जा साहब की एक तहरीर खुतबा इल्हामिया में जाके पढ़ें, लेक्चर सियालकोट लेक्चर लाहौर में जाके पढ़ें। मिर्जा साहब कहते हैं मेरे बाद कोई मसीह नहीं और कोई इमाम नहीं मगर वो जो मेरे दिल के तौर पर है। फिर खुतबा इल्हामिया में कहते हैं मैं खातमुल औलिया हूँ और मेरे बाद वही होगा जो मेरे अहद पर होगा। तो मिर्जा साहब तो बार बार ये कौन से साल में आई है, कौन से साल में कहा था ये? खुतबा इल्हामिया तो 1900 कौन से साल में कहा था ये, ईयर बताएं जरा। खुतबा इल्हामिया 1900 में आया था, 1900 में। फिर मिर्जा साहब ने अपनी वफा से तो अब मिर्जा साहब की मुजद्दद आएगा, मिर्जा साहब ने कहा है कि मुजद्दद आएगा, तो ये दायमी रूहानी खिलाफ हर सदी के नहीं, हर सदी के सर पे आएगा। हाँ, हर सदी के सर पे आएगा। हाँ जी। अच्छा अगर हर सदी के सर पे आएगा, हाँ, तो फिर वो तो कहते हैं कि मेरे ज़माने में कोई आ ही नहीं सकता और मेरे ज़माने में कोई नहीं आ सकता और मेरे बाद कोई ज़माना है ही नहीं। यार वो अब जहलियत की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अपनी वफा से 20 घंटे पहले कह के गए हैं मुजद्दद आएगा, तुम कह रहे हो वो ये कह रहे हैं। उनका ज़माना तो वो है, उनकी सदी, उस सदी में उनके अलावा कोई नहीं। वो तो कह रहे हैं ये दायमी रूहानी खिलाफत है, बार बार कह रहे हैं, एक जगह नहीं कह रहे। तो वो कहते मेरे बाद कोई सदी, मेरे बाद कोई ज़माना ही नहीं है, इसके बाद उनके बाद कोई सदी है ही वो नहीं। कब कहाँ कहते हैं, मतलब अगली सदी आएगी नहीं। वो उन्होंने तो खुद बताया है कि उस मसीह को याद रखो जो मेरी ज़ुर्रियत में से है। अगर किसी ने नहीं आना तो फिर क्यों कहते हैं मेरे बाद कोई ज़माना नहीं है, वो कहते हैं मेरे बाद कोई ज़माना ही नहीं है। बस तुम ठीक है, तुम मेरी बात तुमने सुननी नहीं है, यही तो तुम्हारा है। मेरे साथ तुम लोग बात ही नहीं कर सकते इसी वजह से कि तुम लोगों के पास जो तहरीरें हैं ना वो खुद ही बता रही हैं, मिर्जाइयों की तरह तुम एक तहरीर लेके बैठे। फिर मैं कहता हूँ कि आप ऐसी तहरीर मुझे दें जहाँ मिर्ज़ा साहब ने कहा हो मेरे बाद कोई मुजद्दद नहीं आएगा।
میں آپ کو تحریریں دیتا ہوں 100 سے زیادہ جہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجددین کا سلسلہ، وہ شروع تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. مرزا غلام احمد کی کیا اوقات ہے کہ اس کو ختم کر دے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ ہے، صرف ایک ہی سلسلہ ہے اسلام میں، وہ مجددین کا سلسلہ ہے. اس کے علاوہ تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. نہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ انہوں نے کہا یہ میرے تو بعد آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مرزا صاحب کی تحریر کہہ رہی ہے کہ میرے بعد کوئی زمانہ نہیں ہے. تو جو میں نے ابھی باتیں بتائی ہیں وہ تمہارے ناک سے نکلی ہیں کہ کہیں اور سے تمہیں سنی نہیں؟ میں نے کہا مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ اس مسیح کو یاد رکھو جو میری ذریت میں ہے. تم کہہ رہے ہو ان کے بعد کوئی نہیں ہے. جو تم تحریریں پیش کر رہے ہو، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو مرزا جو صاحب میں کہہ رہا ہوں وہ کون سی باتیں میں کر رہا یہ ہوں؟ جو تم تحریر سے اخذ کر رہے ہو اس کو میں جھٹلا رہا ہوں مرزا صاحب جو کی تحریر سے. میں نے اخذ تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے صرف تحریر بیان کی ہے. میں نے اخذ تو اخذ کچھ کیا ہی کیا؟ نہیں، تم صرف اخذ تحریر یہی بیان تو کی کر ہے. رہے ہو اخذ کہ تم یہ کہہ رہے ہو تحریر ہے. مرزا صاحب کے بعد کسی نے نہیں آنا. میں تمہیں تحریر بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے آنا. مرزا صاحب کی تحریر پڑھی، مرزا صاحب کہتے ہیں میرے بعد کوئی زمانہ نہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں میرے بعد کوئی زمانہ نہیں ہے. یہ تحریر میں نے کوئی پڑھ لی مرزا زمانہ صاحب نہیں، کی. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں، صرف وہی آئے گا جو میرے عہد میں ہو. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کے بعد زمانہ ہے. مرزا صاحب اب سارا زمانہ ہی مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد بھائی آپ کہہ رہے سارا ہیں زمانہ ہی مرزا آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کے بعد زمانہ ہے. نہیں، مرزا صاحب نے خود کہا ہے اب میرا زمانہ ہے، اب میرا جو عہد پہ ہوگا وہی آئے گا. اب انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد اب کسی نے نہیں آنا. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا سلسلہ جاری ہے، ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. تو تمہاری بات کا جھٹلا دیا نا میں نے. تم جو اخذ کر رہے ہو کہ ان نے کہا میرے بعد کوئی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، میرے بعد مجدد آئے گا. مرزائی ہو یا نام نہاد مسلمان ہو، سب کو اوکے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تم تو ویسے ختم نبوت کے منکر ہو مرزائیوں کی طرح. بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ بعد از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کو بھی منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا. ہاں جی، اور تو جس یہ شخص کو بھی آپ منصب اپنی کہانی نبوت عطا بنائی کیا ہے جائے نا، گا اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق وہ دجال اور کہانی کذاب. بنائی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں فرمایا. انہوں نے فرمایا انہو لا نبی بعدی سیکون خلفاء ویکثرون، میرے بعد کوئی نبی نہیں، صرف خلفاء ہے. یہ آپ لوگوں نے تحریفیں کی ہیں نا، اس میں چیزیں گھسیڑ رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں آپ اپنی چیز ایک غلطی کے زالہ میں مرزا صاحب نے یہی تو ڈنائی کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں بھائی میں نبی نہیں ہوں، میں تو نبی ہوں. آپ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں لا نبی آبادی، ادھر کہتے ہیں وہ ڈیفینڈ کریں کہ میں نبی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں لا یہ نبی کیا ایسی آبادی. پھر دو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ. وہ کہتے ہیں میں نبی نہیں ہوں، اور کہتے نہیں ہیں پڑھے، بروزی پہلا پیج صورت پڑھے. میں. ایک غلطی کے زالے کا پہلا پیج ہاں تو پڑھے بھائی. پڑھے ایک غلطی کے زالے کا پہلا پیج. اصل کلام یہ ہے نکالیں. کہ مجھے بروزی صورت نے نبی بنایا ہے. بروزی صورت میں جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی نبی نہیں ہوتا. ہاں تو بروزی صورت میں کون سا نبی ہوتا ہے؟ کون سی آیت ہے جس میں بروزی صورت میں نبی کا کہا گیا ہے؟ وہ تو مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں یہ استعارہ مجاز کے رنگ میں. آپ بھی مرزائیوں کی طرح مرزا صاحب کی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نبی رسول مرسل کے الفاظ سے مجھے پکارا گیا ہے، لیکن یہ حقیقی طارق بھائی آپ مرزا صاحب کی نہیں مانتے، آپ مرزا صاحب کی باتوں کے منکر ہیں. آپ لوگ منکر ہیں. آپ تو خیر ہے ہی منکر، مرزائی بھی منکر ہیں. آپ بھی ایک نبی لانا چاہتے ہیں، مرزائی بھی ایک نبی لانا چاہتے ہیں. ہم دونوں پہ ہی سمجھتے ہیں. قرآن کی قائد دے دیں ذلی بروزی نبوت پر. تو میں تو کہتا ہوں ذلی بروزی نبوت ہے ہی کوئی نہیں. مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں ذلی بروزی نبوت کوئی نہیں ہوتی. قرآن میں کہیں نہیں ہے. کیوں کوئی نہیں ہے قرآن میں، نہ حدیث میں. پھر دوبارہ یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں، پھر یہ دوبارہ ریکارڈ حدیث کروائیں. میں نہ قرآن میں ذلی بروزی نبوت کا کوئی ذکر نہیں. ہر بار ریکارڈ. پھر جماعت احمدیہ کیوں مانگ کی؟ وہ تمہاری طرح گمراہ ہے نا، اس وجہ سے. یہی تو میں ثابت کر رہا ہوں، تم بھی گمراہ ہو وہ بھی گمراہ ہیں، دونوں ایک نبی لانا چاہتے ہیں. ختم نبوت کے ہم نہیں لے کے آنا چاہتے. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا عیسیٰ ابن مریم. کہاں کہا ہے انہوں نے میں نے نہیں کہا. بنی اسرائیل؟ جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں خلفاء ہے، تو پھر کہاں کہا ہے انہوں نے؟
वो कह रहे हैं ला नबी आबादी सही मुस्लिम सही मुस्लिम सही मुस्लिम में उन्होंने यही कहा है ना, वो मेरा खलीफा है, ईसा इब्ने मरियम जो आएगा वो मेरा खलीफा है। भाई उन्होंने कहा कि ईसा इब्ने मरियम इन्ना खलीफा थी मिन बादी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं, खुलफा है। और इब्ने मरियम का उसका आने का कहा, वो मेरा खलीफा है मेरे बाद। आप रसूलन इला बनी इसराइल लाना चाहते हैं भाई, जैसे हजरत मूसा के हजरत हारून थे वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। इसमें क्या बात? हाँ, तो ये कहाँ उन्होंने कहा है? कहा ना कि ईसा इब्ने मरियम का हदीस सुनाओ, ये ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा। कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही आएंगे जैसे हजरत हारून आए थे। कहाँ लिखा है? क्यों झूठ बोलते हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? भैया कोई शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ तो आप मंसूब कर रहे हैं। वो कहते हैं ईसा इब्ने मरियम आ गए, आप कहते नहीं आएंगे। इन्नहु ला नबी आबादी सयकूनु खुलफाउ फयक्सरू। मैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना रहा हूँ। मैं भी तो उन्हीं का कलाम बता रहा हूँ। कहते हैं कि अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उसकी कसम खा कहता हूँ कि ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल होगा। हाँ, तो नसूल होगा तो उन्होंने कहा वो मेरा खलीफा है, क्योंकि उन्होंने कहा नबी कोई नहीं, खलीफे हैं मेरे पास। और ईसा जिसका नज़ूल होगा वो मेरा खलीफा। तो भाई नज़ूल होगा तो खलीफा हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ईसा इब्ने मरियम इसमें तो कहाँ उन्होंने कहा है कि वो रसूलन इला बनी इसराइल है? ये तो आपने तहरीफ की है ना अपने ड्राइंग। उन्होंने कहाँ कहा कि इब्ने चिराग बीबी हैं? ये कहाँ कहा उन्होंने? इब्ने चिराग बीबी तो कोई नहीं है, वो कोई इब्ने मरियम तो नहीं है। इब्ने कहाँ चिराग कहा? नहीं, कहाँ कहा है उन्होंने? तो कहाँ है? किसको कौन कहता है इब्ने चिराग बीबी इब्ने मरियम? कौन कहता है? वो मिर्जा साहब खुद कहते हैं। मिर्जा साहब खुद कहते हैं। नहीं, मिर्जा साहब कहते हैं मैं खलीफा हूँ, 13वां खलीफा हूँ, और मुझे ये नाम दिया गया है। 14वीं सदी के मुजद्दिद को 3 नाम दिए गए हैं, हकम, मेहदी और मसीह। हाँ, ये किसने दिए ये नाम? ये 3 नाम किसने दिए? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने किधर दिए? कुरान की आयत पेश करें। मुजद्दिद, मेहदी, ईसा, ये कहाँ दिए? अल्लाह के नाम बताएं जरा, कुरान की आयत बताएं। तो क्यों दो कुरान दो? मिर्जा साहब ने कहा है मुझे खुदा ने ये चीजें बताई, कुरान की आयत क्यों दो? तो यही तो बात है, बस यही तो मसला है। देखें ना, अब आपके पास कुछ साहब का है ही नहीं। वही मिर्जा साहब, आप मिर्जा साहब के भी मुनकर हैं, आप मिर्जा साहब के भी मुनकर हैं। चौहान साहब, आप मिर्जा साहब को भी नहीं मानते। मैं तो मिर्जा साहब को मानता हूँ, तुम लोग तो नहीं मानते, मिर्जाई भी नहीं मानते। मिर्जा साहब ने कहा ना नया नबी आएगा ना पुराना। आप मिर्जा साहब के मुनकर हैं, हो चुकी है ना नया नबी आएगा ना पुराना। हर शख्स जो कोई नया मिर्जा साहब के मुनकर है। तुम रसूल अल्लाह के मुनकर हो, बल्कि तुम गुस्ताख हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिर्जा साहब ने कहा था, तुम कहते हो 30 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली, अल्लाह ताला ने नौज़ुबिल्लाह 3 साल में उनको उठा लिया। तुम तो गुस्ताख हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कि उनको मिशन पूरा नहीं करने दिया। किसने कहा? किसने कहा कि 30 साल में नबूवत मिली 3 साल में? ये किसने कहा कि 30 साल में नबूवत मिली 3 साल में उठा लिया? ये किसने कहा? तो कब मिली उनको नबूवत? तुम बता दो भाई। आलम अरवा में मिली नबूवत। कब मिली उनको? हजरत ईसा आलम अरवा में नबी थे। आलम अरवा में वो नबी थे। अच्छा, जब रूह तख्लीक की थी तब भी वो नबी थे। अरवा में नबी थे, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में मिली। भाई सब की पूरी ये जितनी पूरी मैं बताता हूँ ना, हमारा ये मतलब है कि हजरत ईसा आलम अरवा में नबी। भाई मैं बताता हूँ ना, मैं अपना मतलब तो सुन ले। अब मतलब मेरा देख, मेरा मतलब सुन ले भाई। आलम अरवा के अंदर ये जितना ये जो टर्न्योर चल रहा है, जितना एंड ऑफ द डे तक का टर्न्योर चलेगा, वो सब का सब आलम अरवा में अल्लाह ताला ने ऑलरेडी लिख दिया था कि मैंने इनको नबी बनाना है, इनको मैंने ये बनाना है। वो सब वहाँ पे कौन सी आयत है? कौन सी आयत है ये जो आपने कौन सी आयत पेश की अभी तक? आप भी तो ऐसे जुबानी कलामी हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। तो तुम मेरा मतलब तुम वैसे ही बात कर रहे हो, यानी इसका तुम्हारे पास कोई शुरू किसने की है? शुरू तो आपने किया। तो मैंने तो तुमसे पूछा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कब नबूवत मिली? तुमने कहा आलम अरवा में। मैंने पूछा इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? कुरान की कोई आयत है? तुमने कहा नहीं, मैंने तो ऐसी बात कर दी। तो ना करो ऐसी बात। मैं बताता हूँ ना भाई, आपने भी तो ऐसी बात कर दी ना। जब मैंने आपसे पहले पूछा कि भाई आप ये जो बात कर रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कि ईसा इब्ने मरियम जो है वो कैसे कन्वर्ट हो गए इब्ने मरियम चिराग बीबी में, तो आपने भी कन्वर्ट तो हुए नहीं। आपने कहा 3 नाम है। कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए। बात तो सुने, आपने क्या कहा? मैं बताता हूँ। आपने कहा, मैंने कहा है कन्वर्ट। अच्छा बात तो करने देना, बात करने देना। आपने कहा मानो कि तुमने झूठ बोला है।
पहले मानो नहीं कि मैं तुमने बताता हूँ, झूठ मैं बोला है। बताता हूँ ना, अगर मेरी बात सुन ले, अगर मैंने कहा है कि वो अगर कन्वर्ट मैं हो गए। मुझे मेरी मैं बताता हूँ ना आपने क्या कहा, मैं बताने लगा आपने क्या कहा। आपने बताओ। कहा कि अल्लाह ने कहा कि वो जो है मुजद्दिद हैं, ईसा इब्न मरियम हैं और इमाम मेहदी हैं। मैंने पूछा अल्लाह ने ये कहाँ कहा है? कुरान की कोई आयत पेश कर दिया, आपने कहा नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपने कहा कहीं भी नहीं है कुरान की आयत। पहले आपने कहा अल्लाह की तरफ मंसूब की कि अल्लाह ने ये बात की है, फिर मैंने जब आपसे आयत पूछी आपने कहा अल्लाह कहीं ने भी नहीं है मिर्जा आयत। साहब से बात तो ये की भी बात है ना, आप भी हंसी ठट्ठा कर दिया ना। हाँ, नहीं मैंने कहा है, अल्लाह ने मिर्जा साहब से बात की है। मिर्जा साहब को तो इल्हामात बारिश की अल्लाह साहब ने तरह- मिर्जा से क्या बात की? अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब से यही जो अभी बताइए कि वो हाकम, महदी और मसीह, उनके 3 नाम हैं, और वो 14वीं सदी के मुजद्दिद है, और वो इमाम महदी। अल्लाह ताला की मुतअख्खर वही ने मुझे मसीह मौद, महदी मौद और मसीह मौद कहा। मिर्जा साहब खुद कहते हैं, मैं मिर्जा साहब कहते हैं कि जो मुझे नबी ना कहे उसकी एक्सप्लेनेशन देने का मैं नबी हूँ। आप कहते हैं नबी नहीं है। कहाँ है उन्होंने कहा है? वो तो कह रहे मुझे गलती का बुरूजी ज़ाला सूरत में नबी बनाया। पढ़े वो भी पे पढ़े हैं भाई, उसी में ये गलती का ज़ाला में उन्होंने कहा है मुझे बुरूजी सूरत ने नबी बनाया। जो उनको बुरूजी सूरत में नबी नहीं मानता वो मिर्जा साहब को मुनकर है। भाई मिर्जा साहब नबी हैं, आप पढ़े ये गलती का ज़ाला का पहला पेज पढ़े आप। वो भी पढ़ा तो है, वही तो बता रहा हूँ। एक गलती का ज़ाला में उन्होंने कहा है ना मुझे बुरूजी सूरत ने नबी बनाया है, और बुरूजी सूरत में जो नबी होता है भाई- वो इस्तारा और मजाज के रंग में होता है, वो नबूवत नहीं होती। वरना मिर्जा साहब ये क्यों कहते वो नबूवत- मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना नया नबी आएगा ना पुराना, आप ये ना कहते हैं कि नया जिल्ली नबी बुरूजी नबूवत आएगा की ना नबूवत नहीं। पुराना, और जो भी कोई नया या पुराना लाना चाहता है वो खत्म नबूवत का मुनकर है। कौन सा नबी आएगा? नया या पुराना नहीं आएगा तो कौन सा नबी आएगा? कोई भी नबी नहीं आएगा, नबूवत खत्म हो चुकी, नहीं ना नया आएगा ना पुराना खत्म आएगा। नबूवत हो चुकी नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं आएंगे। है। नबी नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफात पा चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे ख्याल वो में नहीं भी आएंगे आसमान बुरूजी पर- सूरत में दोबारा। तुम्हारे ख्याल में आसमान पर वो भी नहीं जिंदा बासा सूरह जुमा की आयत नंबर 3 के तहत वो मोहम्मद दोबारा नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। आसमान पर जिंदा है। भाई मैंने पूछा कि वो सूरह जुमा की आयत नंबर 3 के मुताबिक उनकी दोबारा बासत होगी, और क्या वो जिल्ली हाँ, बुरूजी तो तौर वो पर दोबारा बुरूजी सूरत 1000 में- मरतबा नहीं आएंगे? हाँ, तो बुरूजी सूरत में तो मिर्जा साहब ने कहा है मैं भी बुरूजी सूरत में नबी हूँ, तो ये कोई नबूवत नहीं है ना। नहीं वरना बुरूजी वो सूरत में क्यों आएंगे। कहते ना नया अच्छा नबी आ बुरूजी सकता है। सूरत में नहीं, एक मिनट रुक जाए ना, आप रुक जाए, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि वो बुरूजी सूरत में आएंगे और लेकिन नबी नहीं होंगे, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बासत होगी, लेकिन वो जो है वो नहीं नबी नहीं मैं होंगे। तो कह रहा हूँ बुरूजी सूरत में वो हर सदी पर आते हैं मुजद्दिद की सूरत में, और नहीं मिर्जा साहब वो के हर वक्त सदी के 14वीं सर पे तो आते हैं, लेकिन जब उनकी लेकिन सूरज जुमा की आयत नंबर 3 के तहत तो उनकी तो सिर्फ एक ही बासत होनी है। नहीं, वो अजीम बासत की बात है। बासत आप नहीं तो हर मानते? हर सदी पे होती है। ये वो जो बासत ये जो उनकी बुरूजी अजीम रंग में है बासत ना। है, ये जो अजीम बासत है, ये जो उनका दोबारा दुनिया में जिल्ली बुरूजी तौर पर आना है, ये कहाँ है? कुरान और हदीस में कहाँ है ये? तो कब कह रहे हैं हम ये कुरान की बात? हम तो मिर्जा साहब की वही की बात कर रहे हैं। मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने वही के तो ये जरिए मतलब ये बात कुरान और हदीस में कहीं नहीं है ये कहीं नहीं। ये कुरान और हदीस में कहीं नहीं है ये की। नहीं नहीं, कि दूसरी बासत होनी है, वो जिली ब्रूजी तौर पर आना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये सब मनगढ़ कहानियां ये। यार अकल के अंधे, अभी मैंने तुम्हें कहा है अल्लाह ताला ने वही के जरिए बताया मिर्जा साहब। अल्लाह ताला का कलाम मन कटत होता है। अब मिर्जा साहब की माननी है या अल्लाह के नबी की माननी है? मिर्जा साहब की माननी है, मिर्जा साहब की माननी है, अल्लाह के नबी की माननी है? मिर्जा साहब की माननी, क्योंकि मिर्जा साहब नबी को रिप्रेजेंट कर ठीक रहे है, हैं। मतलब मिर्जा साहब की मानेंगे तो फिर हाँ नहीं, हम तो मिर्जा साहब की मानेंगे, नहीं, मिर्जाई नहीं मानते। आप लोग तो वैसे ही उनको अल्लाह के नबी की नहीं मानेंगे, मिर्जाई नहीं मानते भाई। अल्लाह के अल्लाह के नबी नबी को की नहीं माने, रिप्रेजेंट वो कर रहे अल्लाह के हैं। नबी की नहीं माने, मिर्जा साहब की माने। नहीं, अल्लाह के नबी को मिर्जा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुरान को मिर्जा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुरान और रसूल अच्छा। मिर्जा साहब के अभी जब जरिए ये कुरान में कहीं है नहीं, अच्छा ये जो आपने कहा कि ये कुरान में कहीं नहीं है, जिल्ली ब्रूजी नबूवत कुरान में कहीं नहीं है, तो मिर्जा साहब का तो पूरा दावा ही इसके ऊपर खड़ा है कि वो जिल्ली ब्रूजी नबूवत उनको मिली है, तो उनका तो दावा ही पूरा जिल और ब्रूज के ऊपर है। तो अगर जिल और ब्रूज की कोई उनका ये हकीकत दावा कुरान और नहीं है। हदीस में है ही नहीं, उनका तो दावा वो- है। अभी झूठ ना बोलो, तुम्हें अगर नहीं इल्म तो मुझसे सुन लो। मिर्जा साहब का दावा है। आप पढ़े गलती का ज़ाला, आप पढ़े गलती का ज़ाला। वो तो बता तो रहा हूँ, गलती का ज़ाला में उन्होंने कहा है बरूदी सूरत ने मुझे नबी बनाया है। चलें बोल
चले बोलें मिर्जा साहब का क्या दावा? मैं बोलें मिर्जा आयत साहब का इस्तखलाफ के दावा- मुताबिक बोलें, स्टेटमेंट दें ये वाली। हाँ, मेरा ये स्टेटमेंट है कि मिर्ज़ा साहब का दावा उन्होंने कहा है कि मेरा दावा अल्लाह ताला की वही और कुरान से है, यानी वो कुरान का इल्म जो मिर्ज़ा साहब को दिया गया है हर एक ज़ीरू से ज़्यादा, उस इल्म के तहत उन्होंने ये दावा किया है। मिर्ज़ा साहब की वही जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर नाजिल हुई और कुरान मजीद का जो इल्म मिर्ज़ा साहब को दिया गया है वो उनके दावा की बुनियाद है। और उनके मुताबिक आयत इस्तखलाफ में अल्लाह ताला ने जो खुलफा का वादा दिया है वो दायमी रूहानी खिलाफत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुजद्दिदीन की सूरत में है। तो उनका दावा आयत इस्तखलाफ के मेरी बात- मुताबिक है और हदीस मुजद्दिदीन के मुताबिक। ओके, अब सुन लें। आपने स्टेटमेंट ये दी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का दावा उनके इल्हामात और कुरान से है, ऐसे ही? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने ज़िल्ली बरूज़ी नबी होने का दावा किया? ज़िल्ली बरूज़ी नबी जो है उन्होंने कुरान से इस्तेमाल पहले किया। बताएं, एक हाँ नहीं जी, पहले है। मिर्ज़ा वो साहब कई ने दफ़ा ज़िल्ली बता बरूज़ी दिया है। ज़िल्ली बरूज़ी नबी होने का दावा बरूज़ी किया? सूरत ने मुझे नबी बनाया, कितनी दफ़ा बताया है? मैंने पूछा कि मिर्ज़ा साहब का ज़िल्ली बरूज़ी नबी होने का दावा है? जी जी, आगे चले। ये जो उनका ये अब कुरान से साबित कर दें, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि उनका जो दावा है वो उनके इल्हाम और कुरान है, तो कुरान में तुम भी किधर जैसे गलत बात है? मिर्जाइयों की तरह तुम भी इतने ही बेअक्ल हो। अभी मैंने तुम्हें ये बताया है कि मिर्ज़ा साहब का इल्हाम और कुरान का वो इल्म जो मिर्ज़ा साहब को दिया गया है, तो जो कुरान का इल्म मिर्ज़ा साहब को उससे मत साबित करेंगे। वो जो लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, उसमें मिर्ज़ा साहब के मुताबिक जो ये शर्त अल्लाह ताला की तरफ से लगाई गई है ना कि अल्लाह ताला के साथ इस रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के नतीजा में आपको 4 इनाम मिलेंगे: नबूवत, सिद्दीकियत, शहीद, सालिह। ये इनामात ज़िल्ली नबूवत है, ज़िल्ली सालिह है, ज़िल्ली शहीद है। यानी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल नहीं होगा उसको ये इनाम नहीं मिल सकते। वो ना शहीद हो सकता, ना सालिह हो सकता, ना नबी हो सकता। तो मिर्ज़ा साहब ने इसको ये एक्सप्लेन किया है अच्छा, ये- कि अल्लाह ताला ने इसमें अच्छा। ज़िल्ली नबूवत का जिक्र किया है और तमाम इनामात ज़िल के तौर पर हैं। समझ आ गई? अच्छा, ये जो सदीकियत है, सदीकियत हाँ, एक इब्लीस की इत्बा कर रहा है। तो इत्तबाए रसूल ये कैसा इनाम है कि जो पहले भी सच्चा है और बाद में भी सच्चा होगा? ये कैसा इनाम है? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं कि पहले भी वो सच्चा होगा, बाद में उसे सच्चों का इनाम, मतलब वो बाद में भी सच्चा होगा? मतलब भी ये 4 इनाम मिलेंगे उससे। एक शख्स पहले इत्तबाए रसूल में पहले भी सच्चा है और बाद में इत्तबाए रसूल के बाद भी उसको सच्चे का इनाम मिलेगा। यार ये क्या स्टोरी है ये तारीख भाई? ये क्या है? कैसी तुम जाहिलियत की बात कर रहे हो और दांत भी निकाल रहे हो अपने। एक जाहिलियत की बात नहीं, ये करके दांत क्या है निकाल ये? रहे हो। यानी वो शख्स नहीं, जो एक बंदा सच्चा पहले है- भी हाँ हाँ हाँ, तो उसको मेरी इनाम भी बात- उसको इनाम में भी सच्चाई कहा जा रहा है। वो पहले भी सच्चा है और इनाम में भी उसको सच्चा कहा जा रहा है। नहीं, सिद्दीकियत एक मर्तबा है कि ऐसा शख्स जो भी काम करता है, जो भी उसके अमाल है वो सच्चाई पर मबनी होते हैं। तो ये दर्जा जब वो एक इत्तबाए रसूल करता है तो तब उसको ये दर्जा मिलता है।
सारे शख्स तो एक शख्स तो सच बोल रहा है। सिद्दीकियत का ये मतलब नहीं है सिर्फ सच बोलना, बल्कि सच्चाई के ऊपर कायम हो जाना, और इसकी तौफीक तो उसको जो मिलती पहले है वाला जो इत्तबा रसूल में जो इत्तबा रसूल में शख्स है वो जो सच बोल रहा है वो सच पे कायम नहीं है, सिर्फ सच बोल रहा है उस पे कायम नहीं है। अब ये कहना चाह और रहे भाई तुम्हें सिद्दीकियत का पता ही नहीं है कि वो क्या है दर्जा, सच पर कायम रहना। पहले वो बताया सच कि बोल क्या- रहा है, बाद में भी सच बोल आपने रहा है, बताया ये कि- सिद्दीकियत। तुम्हें तो पता ही नहीं सिद्दीक अच्छा होती क्या है। सिद्दीकियत, अच्छा सिद्दीकियत क्या होती है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तो बताता हूँ सिद्दीकियत होती क्या है। नहीं, एक बंदा पहले भी सदीक है, वो बाद में अभी भी तुम्हें सदीक पता ही बनेगा। नहीं, जब तुम्हें पता ही नहीं एक सिद्दीकियत पहले होती साले क्या है, एक पहले साले है, वो बाद में भी साले बनेगा। हाँ यार ये तो क्या है? यही तो मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं कि सिद्दीकियत क्या होती है, सालियत क्या होती है। जब तुम लोगों को ये पता ही नहीं है तो फिर तुम क्या इसके ऊपर तुम डिस्कस करते आप बताएं आप बताएं सदीकियत क्या है, सालियत क्या है, बताएं। बताता हूँ, एक मिनट ठहरो। डॉक्टर साहब खोल लें किताबें और किताबें खोल लें, भाई मिर्जा साहब की पढ़ के आपको सुनाऊंगा 15-20-50 किताबें सुने। मिर्जा साहब की आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने बताया है कुरान नबी हदीस क्या से कुछ होता है। नहीं, कुरान हदीस से कुछ नहीं है आपके पास? कुरान हदीस से कुरान यार, कैसे हदीस तुम जाहिल इंसान हो। अभी मैंने तुम्हें से कहा कुछ नहीं है है आपके पास? कोई ज़िली बरूजी नबूवत कुरान हदीस से नहीं है? ओ देखो, अब मैं तुम्हें जाहिल कहूंगा क्योंकि अब मैंने सारी बात बता दी, फिर भी तुम उसी जाहलियत वाले जीरो जो है ना जगह वहां पे खड़े हो। अभी मैंने तुम्हें बताया है कि मिर्जा साहब को कुरान का इल्म दिया गया, मिर्जा साहब को वही के जरिए आप मिर्जा अल्लाह साहब को ताला नहीं ने मानते ना, बताया। आप मिर्जा साहब को नहीं मानते, आप मिर्जा साहब का इनकार तो मैं करते हैं लानत तारीख में। डालता हूँ हर उस शख्स पे जो मिर्जा साहब को नहीं मानता। वो एक बदतरीन शख्स है, एक कुत्ते से 1000 दर्जा बदतर है जो मिर्जा साहब को नहीं मानता। अब तुम्हें पता चल गया हो कि तुम्हारी क्या पोजीशन है। गालियां नहीं, गुस्सा नहीं करना आपने, बीपी नहीं आई नहीं नहीं, मैं क्या इसमें मिर्जा साहब ने खुद अच्छा लिखा है। बीपी नहीं हाई करना वो आपने। एक कुत्ते से 1000 दर्जा बरतर है जो मिर्जा क्या? साहब को नहीं मानता, और तुम वो हो। अब तुम्हें पता चल गया कि तुम कहाँ पे खड़े हो। लेकिन आप नहीं मानते ना मिर्जा साहब को, आप इनकार भाई करते हैं उनकी तुम जो तहरीरात से। मर्जी कहते हो वो तो मिर्जाई भी यही कहते हैं। मैं तो हर वक्त मिर्जा साहब की बात पेश करता हूँ। अभी तुमने मुझे कहा है सिद्दीक, वो कहते हैं वो मिर्जा साहब का, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। यार अब शॉर्ट समझा देना। और भाई शॉर्ट ही समझाने लगा हूँ, वो तो किसको लंबा तो नहीं है। क्या है, क्योंकि मैं इस वक्त वो मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। मिर्जा साहब ने जो लिखा हुआ है ना, वो अगर आपको वो इल्म हो जाए तो आप इस तरह की बातें ही ना करें। लेकिन आपके से वो इल्म छीन लिया गया है क्योंकि आपने मिर्जा साहब का इनकार कर दिया। आपकी तरक्की हो नहीं सकती। यही बात मिर्जाइयत के साथ है, उनकी भी तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि आप पहले से ही एक शख्स जो नए अलूम लेकर आया है उनको आपने झूठा कह दिया, तो जाहिर है कहाँ से आपको नए इल्म मिलेंगे। वो तारिक साहब आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही। आपने शहीद समझ लिया कि शहीद वो होता है जो भी है, जंग में साले भी मारा। जरूरी है ना? नहीं, मुत्तकी होना जरूरी है। ये मुझे तो बताएं कि अल्लाह ताला ने इत्तबाए कुरान रसूल के में लिए फरमा दिया। सदीक होना साले होना जरूरी है क्या? जो मुत्तकी होता है वो साले और सदीक नहीं होता? नहीं, अगर मुत्तकी सारा कुछ पहले ही होता है तो फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों शुरू में फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। इसका मतलब ये है कि जो पहले मुत्तकी है वो उसके दर्जात बुलंद होंगे इस कुरान को पढ़ने के बाद। अच्छा तो तो जो अगर वो सारा कुछ पहले ही हो गया है तो फिर इत्तबाए तो उसकी रसूल के तरक्की लिए क्या होगी? और
इत्तबा रसूल के लिए, अच्छा सुन तो ले दो एक मिनट ठहर। सुन तो रहा हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं कह रहा। मुत्तकी होने के लिए सॉरी, इत्तबा रसूल के लिए मुत्तकी होना जरूरी है, और मुत्तकी जो होता है वो ना सादिक होता है ना वो साले होता है, आप ये कह रहे हैं, ऐसा ही है ना? ये मुत्तकियों के दर्जात हैं। तारिक भाई जो मुत्तकी होना तो एक शर्त है। तारिक भाई यार मेरी बात तो सुन लेना, जो मुत्तकी होता है आप कह रहे हैं कि मुत्तकी जो है, तो मुत्तकी आप कहते हैं मुत्तकी जो है वो साले भी नहीं होता और सादिक भी नहीं होता, सदीक भी नहीं होता और साले भी नहीं होता, ये कह रहे हैं आप? वही मैं तुमका क्या करूं, तुम इतने जाहिल हो कि तुम हर चीज को ना 2/2, 2 दूनी 4 इस तरह के लेते हो। असल बात यह है कि अल्लाह ताला जब ये फरमाता है कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, इसका मतलब है कि कुरान मजीद से हदायत पाने के लिए और दर्जात में बुलंदी के लिए मुत्तकी होना ज़रूरी है। लेकिन मुत्तकी जो होता है उसको सारे दर्जात तो नहीं मिल जाते, वो तो एक शर्त है रूहानी तरक्की पाने के लिए, दर्जात तो उसके बाद मिलते हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो मुत्तकी होता है वो जो मुत्तकी होता है वो जो मुत्तकी है वो सादिक और साले नहीं होता, आप ये बात कह रहे हैं ना? मुत्तकी जो है वो सादिक और साले नहीं होता। सादिक और साले का दर्जा नहीं उसको मिला होता, दर्जे की बात कर रहे हैं। अगर सादिक से मुराद सिर्फ है सच बोलना, दर्जा भी एक तो साइड वो तो रखें, आपकी मुत्तकी- नादानी है ना। आप ये अच्छा बात तो सुन रहे, जो सादिक जो मुत्तकी होता है, नबी मुत्तकी जो है शहीद वो आप कह रहे हैं कि वो सादिक, ये दर्जात हैं, मुत्तकी के दर्जात हैं। ये मुत्तकी जब अपना सफ़र शुरू करता है, कुरान मजीद अच्छा। पढ़ता है, तो फिर उसके दर्जात बुलंद होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मेरी बात तो सुन ले ज़रा, मैं आपसे पूछ ये रहा हूँ कि जो मुत्तकी है, मुत्तकी सादिक होता है कि नहीं होता? मुत्तकी जो है वो सादिक से साले क्या होता मुराद है कि नहीं होता, ये बता रहे सादिक से क्या मुराद है? हैं। इसका हाँ और नाम है। सादिक से क्या मुराद है? साले से मुराद परहेज, ये जो साले होता है नेक होता है। सादिक से मुराद जो सच बोलने वाला होता है। नहीं, हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम ये जालियत है तुम्हारी, तुम ऐसा समझते हो। सच बोलने वाला सिद्दीक बन जाता है, हर कोई सिद्दीक अकबर बन जाता है सच बोलने वाला। अच्छा ये तो तुम्हें अकल नहीं है इस चीज़ की, ये अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा तुम्हें जो हजरत दर्जात अबू का बकर नहीं मालूम। सद्दीक है, हजरत अबू बकर सद्दीक है, ये जो हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हाँ। ये सादिक हैं, ये सादिक हैं। सिद्दीक, हाँ तो हजरत उमर क्यों ये नहीं सादिक- सिद्दीक, ये हजरत सदी- अली क्यों नहीं एक सिद्दीक? मिनट रुक जाए। ये अब हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सदीकियत के दर्जे पर फायज हैं या नहीं है? हाँ जी है। बताएं हैं, तो ये जिली हैं। ब्रूजी नबी क्यों नहीं बने? ये जिली ब्रूजी नबी क्यों नहीं बने? दिल्ली ये ब्रूजी जिली नबी ब्रूजी क्यों नबी क्यों नहीं बने? भाई उनका भी दर्जा वही है, हाँ ये जिली ब्रूजी नबी, दिल्ली ब्रूजी नबी का दर्जा है उनका भी। जिली ब्रूजी नबी का, हाँ वो जिली ब्रूजी नबी हैं। हाँ जी। तो उन्होंने क्यों नहीं कहा लोगों को कि मैं खलीफातुल मतलब मैं पहला खलीफा हूँ और मैं जिली ब्रूजी नबी हूँ? ये उन्होंने क्यों नहीं कहा? उन्होंने कभी कहा है मैं उन्होंने कभी कहा मैं आयत इस्तखलाफ के मुताबिक हूँ? उन्होंने कभी कहा है मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है? ये बातें तो मिर्जा साहब ने बताएंगे ना हमें। यार अब दर्जा ओ भी भाई, आप कहते हैं दर्जा भी मिल हजरत गया उनको, अबू वो बकर ने सदीकियत कभी कहा पहले है, भी सादिक भी थे, बस दर्जा भी मिल गया। हाँ तो उन्होंने नहीं तो वो कहा। जिली ब्रूजी नबी क्यों नहीं बने भाई? तो दिल्ली ब्रूजी नबी थे वो, नहीं मिर्जा साहब तो मेरी बात कहते सुने, हैं दिल्ली ब्रूजी नबी थे। रुक तो जाए। अच्छा मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुने। और सुन रहा हूँ भाई, अब मेरी मैं तो बात चुप सुनो कर जरा, जाता सुकून हूँ, से बोले सुनिए जाते जरा। हो। तुम मेरी बात तो सुन ले, मैं तो चुप हूँ आगे। अच्छा बात सुने, अच्छा तुम फिर कहती जाओ। अच्छा मेरी बात तो सुन। अच्छा मेरी बात सुने। मिर्जा गुलाम अहमद साहब अब हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिली ब्रूजी नबी बन गए आपके बकौल, आप जैसे कह रहे हैं कि आपका कीदा कि जी वो भी जिली ब्रूजी नबी हैं, ठीक है, ये आपने कहा। तो ये जिली ब्रूजी नबी अगर
मिर्जा अगर 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 हजरत बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है तो उन्होंने तो दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पाया है। तो जिल्ली बरूजी का तो मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए बरूजी रंग में, तो एट अ टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बरूज घूम फिर रहे थे। ये कैसा कीदा है कि उस टाइम दो की यार मतलब देखो, दो तुम नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि जाहिलाना वसल्लम दो बात थे। पहले तुम एक जाहिलाना बात करते हो और फिर कहते हो ये कैसे हो सकता है, और जाहिल तुम खुद हो। तुम ये बात एक जाहिलाना बात कर रहे हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर में बरूज के रंग पे कैसे आ गए, तुम ये कह रहे हो ना? हाँ, ये कह रहे हो ना तुम? मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो बरूज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका बरूज, ये आपका कीदा है। ये कैसा कीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका बरूज हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शक्ल में वो वहां पे मौजूद है। ये कैसे? तो बरूज तो वो उस वक्त बने जब वो आए थे इस्तखलाफ के मुताबिक खलीफा बने। ये अब तुम्हारी अपनी जाहिलियत है। ये तो नहीं कहा कि जब उनका बरूज उस वक्त वो थे जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। भाई ये तुम्हारी जाहिलियत है। तुमने ये कहा है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो हजरत अबू बकर उनका बरूज थे। ये तुमने अपनी जाहिलियत से बात की है, मैंने ये बात नहीं की। मैंने कहा जब वो आए थे इस्तखलाफ के मुताबिक खलीफा बने उस वक्त वो बरूज थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप सदीकियत के दर्जे पर भी हैं, आपने कहा वो जिल बरूज भी हैं। हाँ, तो जब बिल्कुल वो हैं, जिल बरूज बिल्कुल भी हैं। हैं तो एट अ टाइम पे सदीकियत के ओरिजिनल दर्जे और पर भी उसका हैं, बरूज, जिल दो चीजें एक बरूज साथ भी में हैं। कैसे हो सकती हैं भाई? हाँ, एक साथ में कैसे हो सकते हैं ये तुम्हारा मसला है जो तुम्हें समझ नहीं आती। मैं तो कहता हूँ हो सकते हैं, तुम्हें नहीं समझ आती तो मैं उसका क्या करूँ? जाहिलों ने पढ़ाने दा मेरे दी ड्यूटी लगी है। हाँ जी, मौलाना अवैस साहब। अच्छा, बेचना शुरू हो गए हैं इन्नी बहस के बाद रिजल्ट की निकला 0। रिजल्ट 0 2 जमा 2 4 की जगह 0। जाहिलों ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਗਲਤ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਲੀਫਾਤੁल्लाह ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ। एक मिनट भाई एक मिनट रुकना जरा। मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को जानते हो? हैं? नहीं जानते? ठीक है भाई, आप जानते हो? नहीं जानते? ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। अब ऐसा भी है जहाँ पे आप घूम रहे हैं ना, ये जितना आपका ये मैं बताता हूँ ना, काम हुआ है ना, ये मेरा काम है। अभी ये भी एक और ये बताते हैं ना, देखिए आप जानते हैं, आप जानते हैं। अच्छा, कोई भी ना जानने, अस्सलाम वालेकुम। एक भी ना जानने वाला हो। आपने मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम सुना है? जी सुना है। आप क्या जानते हैं उसके बारे में? मतलब ये तो काफिर है। क्या सुना क्या आपने उनके बारे में? उसने नबी को, अपने आप को नबी का आपने नाम सुना? ये है कल इन लोगों आप भी उनके बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं? झूठा मकार जो धोखेबाज है इल्म है। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं आप। तो ये इल्म है। वो कहता है उन्होंने नबी का दावा किया। लानत है ऐसे लोगों पे जो कहते हैं। अच्छा। वो तो कहते हैं ना नया नबी आ सकता है ना पुराना। ये तो भाई अब जिन्होंने बताया उनसे बात करें ना भाई। यही देखें, ये बात ये है कि ये एक बेसिक फाउंडेशंस की बात है। तो जिसने किया उससे पूछें। किसने किया? जो कहते हैं आप, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मिर्जा साहब कह रहे हैं ना नया नबी आ सकता है ना पुराना। खत्म नबूवत के मुनकर तो आप हैं। मैं कारोबार तुसी बनाया है, मिर्जाइयां ने भी बनाया, तुसी भी बनाया खत्म नबूवत के बहाने दे विच। मैं लोगों से जाके पूछूं भाई, लोगों से पूछवाऊं।
तो मुझे उससे अच्छा, क्या ये मुझे फर्क बताया पड़ेगा? ना ये जो सारा पाकिस्तान कह दे, अगर सारा पाकिस्तान कह दे हमने मिर्जा गुलाम अहमद का नाम नहीं सुना, तो मैं लानत डाल, तो मेरे जगह तो कीड़े मकोड़े हैं वो लोग। उन लानतियों का मेरे लिए क्या मतलब को हुज्जत है? अगर अवैस कहता है मैं मिर्जा अच्छा, साहब को नहीं। झूठा मानता हूँ, तो मेरे लिए क्या उसकी हैसियत है? भाई मैं कुत्ते से 1000 दर्जा मेरी बात सुने, बदतर मैंने है। अभी मैं क्या मानता हूँ, मेरी बात सुने। भाई मैं कहता हूँ जो मेरी मिर्जा बात सुने, साहब को मैं क्या नहीं कहता मानता हूँ वो क्या नहीं कहता, कुत्ते, अभी तो ये बात की एक बात है। कुत्ते अभी से तो मैं 1000 आपसे सिर्फ ये दर्जा पूछ रहा बदतर हूँ कि जो मिर्जा साहब को नहीं मानता वो एक कुत्ते से 1000 दर्जा बदतर है। अब बता दो कितने लोग हैं जो कुत्ते से 1000 दर्जा बदतर है? गिन के सुनाओ। पाकिस्तान की सारी आबादी जो है गालियां क्यों निकाल रहे कुत्ते से 1000 दर्जा बदतर है। आप जो गालियां मिर्जा क्यों साहब को निकाल रहे हैं? नहीं ये जो ये मानता। गालियां क्यों इसमें क्या निकाल रहे हैं? गाली है? इसमें क्या अच्छा, आप गाली गालियां है? क्यों निकाल रहे हैं? आप गालियां क्यों ये निकाल रहे गाली हैं? है? ये मेरा अकीदा है कि आप लोग जो मिर्जा भाई साहब को किसी को नहीं कुत्ता मानते, कहना, कुत्ते से किसी को कुत्ता, भाई हम मिर्जा साहब ने कहा हुआ है। मिर्जा साहब ने कहा है जो मिर्जा साहब को नहीं मानता वो सुअरों की ਐਡੀ औलाद ਗਰਮੀ और ਨਾ कुत्तियों की ਕਰੋ, औलाद है। ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा मेरी ਸਾਡੇ बात सुने, ਕੀਦੇ मेरी ਦੇ बात सुने, ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ अच्छा मेरी ਕੀਦੇ बात ਦੇ सुनो, ਮੁਤਾਬਕ मैं ਐ ਸੁਣ ਲਓ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਵੈਸ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ जी। और यार अच्छा बात तो सुने ना, मुझे एक बात बताए ना, ये मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ ये बता दें। अच्छा वो आमिर भाई को बोल रहे हैं जी, आमिर भाई आप बात करें। क्योंकि उसमें तो रौला पै कि मैं अपना बिजली हो गया सी चौहान साहब नाल कहाँ दा तुसीं बड़ा लाया। चौहान साहब नाल तो कोई बंदा ही नहीं है। तारिक चौहान साहब कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो भी ज़िली बरूज़ी नबी हैं। वो कहते हैं वो भी ज़िली बरूज़ी नबी हैं। भाई ये कैसा अकीदा है कि वो पहले भी मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद भी हैं और उनका ज़िल भी मौजूद है। अकीदा है भाई ये मिर्जा तो ये क्या मतलब ये कैसे है? और ज़िल के लिए नहीं आती तो तुम्हारा मसला है। अब मैं मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें समझाना। दूसरे मजहब के ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ। नहीं तो अब ये आमिर भाई आमिर भाई क्या ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को सादिक नहीं समझते? क्या ये हजरत उस्मान गनी को सादिक नहीं समझते? क्या ये हजरत अली को सादिक नहीं समझते? नहीं उन्होंने मतलब ये नहीं है कि सादिक नहीं समझते। उन्होंने एक अपना जो उन्होंने मिर्जा साहब ने दसिया उन्होंने कोई अकीदा है तो उन्होंने नाल लड़ना बनता नहीं है। मेरा गला खराब है, मैं थोड़ा बिजी रिसा। छोटा छोटा भाई हमारे तो कोई नहीं गल चारों खुलफा सादिक भी हैं। मैं क्या करूं तुम लोगों की अकल का? सदीक सच्चा जरूर होता है पर हर सच्चा सदीक नहीं होता। हाँ बिल्कुल। सदीक जितने हैं वो सच्चा सिद्दीकियत के दर्जा पर नहीं फायदा होता। हाँ सिद्दीकियत एक आला दर्जा है। कुरान में इनाम याफ्ता जो ग्रोह हैं 4 उनमें से दूसरे नंबर पर है सिद्दीक। नबीयीन पहला, सिद्दीकीन दूसरा, शुहदा तीसरा और सालिहीन आलम शुहदा। नहीं तो हजरत उमर फारूक अनहो भी तो सादिक हैं और सदीकियत के दर्जे पे फायज हैं आमिर भाई। हजरत उस्मान गनी भी समझ आई है बात की। सदीकियत के सादक और अमीन तो ठहर चांद सा तुसी ना गुस्सा। सादक और अमीन तो पाकिस्तान के आइन में लिखा है, जो सादक और अमीन नहीं वो एमएनए नहीं बन सकता। ये सारे सादक बैठे हुए हैं आपके असेंबली में। आपका क्या ख्याल है, ये सिद्दीक है? नहीं सिद्दीक कोई नहीं, साहिब। ये मखसूस इनाम का दर्जा है और ये इनाम का दर्जा सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दिया गया। चले मैं भी थोड़ा बिजी होने लगा हूँ, फिर आपसे बात होगी।
اللہ بہت بہت شکریہ. میں یہ تو آج میرے ٹھیک نہیں بولا نہیں یار, چارہ گلا بڑا تنگ کر رہا. ٹھیک ہے, میں نے بھی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے انشاءاللہ. پھر میں کرتا ہوں بعد میں نماز پڑھ کے نا, میں نے بھی نکلنا. حي على الفلاح.